जो हम फंक्शन बना रहे हैं, जो हम यूज कर रहे हैं फंक्शन, दे आर हैविंग देयर स्पेसिफिक पर्पस. फॉर एग्जांपल, printf function is used to print the output. Scanf function is used to scan the data from standard input or keyboard. Similarly, clear screen function is used to clear the contents on the screen, or get ch is used to get a character from keyboard. So these are different functions already defined and stored in some library. That's why functions are called library functions. Similarly, we can write our own functions for our ease of use. For example, if you need somewhere to calculate factorial number, no such function in C. So this is not a standard function. कहीं भी आपको available नहीं है कि आप factorial calculate कर लें. So for this purpose, you can write your own function. And the function that is being written by programmer or the user is called user-defined function. Because user or the programmer is defining this particular function, and it is not already defined in the library. That's why this is called user-defined function. Okay. So we can define our own functions as per requirement of our need of the software or whatever need we have. उसके हिसाब से आप अपना फंक्शन जो है वो डिजाइन कर सकते हैं. तो आपने देखा होगा कि sometimes you are doing one particular task. For example, you are scanning an array. Okay, so to scan array, you need a loop, and if you are going to scan a 2D array, in that case, you will require two loops, two for loop, two while loop. कोई से भी आप loop use कर सकते हैं. Loop, you will require two loops, and size of the arrays, कितनी number of rows हैं उसमें, कितने number of columns, and name the array जिस array scan करना है. So wouldn't it be better to have a function that can scan a 2D array just by telling it how many rows and columns are there? So this is the application function. Here you can create your own user-defined function which can be used to perform this particular task of scanning a 2D array given its number of rows and number of columns. Okay. तो आप एक ऐसा फंक्शन बना सकते हैं जो एक 2D array को स्कैन कर दे, जिसका आप साइज बता दें, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की फॉर्म, और उस एरे का नाम दें. तो आपका फंक्शन क्या काम करे? वो फंक्शन एक 2D array स्कैन कर दे. Similarly, there can be a function that can put a 2D array in matrix form. जैसा आपको एग्जांपल बताया था कि आपको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में करना है, यानी कि each row is printed in one row and second row starts from new row and third row starts from next row. So in this manner, you can print 2D array in matrix form. So इसके लिए भी आप एक फंक्शन बना सकते हैं. The task of the function should be to print a 2D array in matrix form. So these are applications which can useful in your programs, and for these applications or for these usages, you can write or you can create your own functions, and these functions will be called user-defined functions. As the name suggests, user-defined functions are entirely designed by the user or the programmer. So here you have full control. आप जो है कोई फंक्शन डिजाइन कर सकते हैं, और उस फंक्शन को डिजाइन करने के बाद आप उसमें डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी जो है इसमें आपको इनपुट चाहिए होंगे और कितने इसमें इनपुट चाहिए होंगे, और क्या ये फंक्शन टास्क परफॉर्म करेगा, इसका आउटपुट क्या होगा, और ये आउटपुट कैसे रिटर्न करेगा. ये सारी चीज़ें जो है वो आप यूज़र के तौर पर डिज़ाइन कर सकते हैं. तो गोइंग टू डिज़ाइन ओन फंक्शन. और आप अगर देखें किसी प्रोग्राम को से आप बना रहे हैं, सो देयर इज जो सिंपल प्रोग्राम्स हैं, दे आर कंटेनिंग ओनली वन सिंगल फंक्शन, दैट इज आपके पास एक छोटा सा टास्क होता है, यू मे बी आस्क्ड टू ऐड टू नंबर्स, वेरी फंक्शन, वेरी स्मॉल यूटिलिटी, तो डायरेक्टली मेन में कर देते हैं. इट मे बी द केस दैट इन सम प्रोग्राम यू रिक्वायर many operations to be performed on some particular data. In that case, you will require more lines of code, and sometimes many tasks may be repeated. For example, as I have told you right now कि आपके पास कोई
ऐसा होता है कि आपने एक एरे स्कैन किया, फॉर एग्जांपल यू वांट टू कैलकुलेट प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स और टू एरेज, आपको दो 2D एरेज हैं, उनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है. सो यू नीड टू स्कैन फर्स्ट मैट्रिक्स एंड देन यू नीड टू स्कैन सेकंड मैट्रिक्स. मैट्रिक्स इज जस्ट 2D एरे. ठीक है, तो आपको पहले मैट्रिक्स स्कैन करना है, फिर सेम प्रोसीजर यूज करना है मैट्रिक्स को स्कैन करने के लिए, फिर आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है, फिर आपको ये रिजल्ट में आउटपुट में शो करना है कि मैट्रिक्स 1 when multiplied matrix 2 gives the matrix 3. So you will require the printing of matrices 3 times. So here you can efficiently use user defined functions. One defined function may be to scan a 2D array, and another function may be the another function that you may write may be to print the 2D array on this matrix form. Is it clear? So you can different user functions. You can divide your task into subtasks. आप अपने प्रोग्राम में जो भी रिक्वायरमेंट है उन सारी रिक्वायरमेंट को आप ये छोटे दूसरे सब टास्क में डिवाइड कर सकते हैं. एंड दिस इज द वे हाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स. कोई भी आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को अगर देखें, दिस इज द वे यू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. यू ट्राई टू divide the problem into smaller pieces and then you try to solve each piece separately and then combine pieces to get the complete solution. So the same thing, same logic is being used in this case. Here we are going to divide our problem into more than 2 pieces. So our problems become, आपके पास बड़ी प्रॉब्लम है, आपने उस प्रॉब्लम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, and then you are solving each part separately. Then adding all these smaller solutions to get the complete solution. This is the logic and dividing the whole problem. And when you have divided the problem, you solve it separately. And when you are solving, you can create functions for solving each and every sub problem. तो आपके पास ये ऑप्शंस हैं कि आप जो है जो सब टास्क आपने डिवाइड किए हैं, एक मेन प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में आपने डिवाइड किया है. सो यू कैन डू दिस कि आप हर प्रॉब्लम अलग अलग सॉल्व करने, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यू कैन नॉट राइट 4 मेन प्रोग्राम्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. यू हैव टू हैव अ सिंगल मेन फंक्शन. ओके, सो व्हेन यू आर डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू मोर देन वन पार्ट, फॉर एग्जांपल यू वांट टू कैलकुलेट, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आप जो है वो 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं. सो यू कैन डिवाइड योर टास्क इनटू सब टास्क. फॉर एग्जांपल फर्स्ट टास्क इज टू स्कैन 1 मैट्रिक्स. ओके, आपके पास एक प्रॉब्लम है कि आपको एक मैट्रिक्स स्कैन करना है, एक प्रॉब्लम ये होगी कि आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है, और एक प्रॉब्लम आपके पास ये हो गई कि आपको मैट्रिक्स को प्रिंट करना है. आपको ओवरऑल प्रॉब्लम ये बताई गई कि आप 2 मैट्रिक्स इनपुट करवाने हैं, उनका प्रोडक्ट करने के बाद उसका रिजल्ट प्रिंट करना है. दिस इज योर प्रॉब्लम दैट इज बीइंग आस्क्ड. ठीक है, ये आपसे कहा गया है. बट व्हेन यू ट्राई टू सॉल्व, तो आप तीनों प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते. सो यू कैन डिवाइड द प्रॉब्लम पार्ट्स. तो आपने उसको पार्ट्स में डिवाइड करना शुरू किया. कैसे आप डिवाइड कर सकते हैं? तो आपने देखा सबसे पहले तो आपको स्कैन करना पड़ेगा. सो यू मेक इट अ सेपरेट पार्ट. तो आपने इसको एक पार्ट कंसीडर कर लिया कि एक पार्ट आपके पास ये होगा जिसमें आपको एक 2D एरे को या मैट्रिक्स को स्कैन करवाना है. ठीक है, फिर आपने रिजल्ट में देखा कि आपको आउटपुट जो है मैट्रिक्स की फॉर्म में ही प्रिंट करवाना है. सो इट मीन्स कि आपके पास एक टास्क ये भी होगा कि आपको मैट्रिक्स फॉर्म में आउटपुट प्रिंट करना है. तो एक आपको मैट्रिक्स स्कैन करवाना है और एक आपको मैट्रिक्स प्रिंट करवानी है. और तीसरा आपका जो टास्क हो सकता है वो है कि आपको 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है. ये भी एक प्रॉब्लम है अपने आप में. तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं. तो यू कैन डिवाइड द होल प्रॉब्लम इनटू 3 पीसेस. तो आपने क्या किया, पूरी प्रॉब्लम को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया. अब आपके पास 3 पार्ट, सो यू कैन नॉट हैव 3 डिफरेंट फंक्शंस. आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 3 अलग अलग प्रोग्राम बना दें. एक जो है स्कैन करने का बना दिया, एक आपने जो है वो प्रिंट करने का बना दिया, और एक आपने जो है वो उसके लिए बना दिया कि आप उसमें कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं. यू हैव टू राइट अ सिंगल फंक्शन. आपको सिर्फ एक मेन प्रोग्राम बनाना है. अब आपको बाकी काम जो करने हैं उसके लिए आप ये काम कर सकते हैं. यू कैन राइट यूजर डिफाइंड फंक्शन. आप जो है छोटे छोटे यूजर डिफाइंड फंक्शंस लिख सकते हैं, एंड दीज फंक्शंस कैन बी यूज्ड
टू सॉल्व ईच पार्ट। आप इस जो आपने पार्ट में अपनी प्रॉब्लम को डिवाइड किया, आप हर पार्ट को अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। तो जो आप सॉल्व कर रहे हैं ईच विल बी कॉल्ड अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। आप हर सॉल्यूशन को जो है कहते हैं कि ये एक हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन हो गया। ठीक है, सो इस तरह से आप जो है 3 डिफरेंट पार्ट में प्रॉब्लम को, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, आपको नंबर प्रॉब्लम जो है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा तो यू कैन डिवाइड इट इनटू मोर देन 3 पार्ट्स। आपके पास प्रॉब्लम बहुत छोटी है तो इसको आप हो सकता है डिवाइड भी ना कर पाए, आपको सिर्फ 2 नंबर का एडिशन, तो आप डायरेक्टली मेन में ही सॉल्व करते हैं। तो आपके पास जो टर्म का साइज होगा उसके आप डिवाइड करेंगे, और जो आप डिवाइड करेंगे उसके हिसाब से आपके यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं वो डिफाइन किए जाएंगे। तो जैसा भी मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आपको 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट प्रिंट करवाना है, इसको आप एटलीस्ट डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका मैट्रिक्स स्कैन करने का, एक आपका मैट्रिक्स प्रिंट करना, और एक आपका जो है वो हो गया मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना। इज इट क्लियर? दिस इज द सिंटैक्स फॉर फंक्शन डेफिनेशन। आप जो फंक्शन डिफाइन करेंगे उसको कैसे आप डिफाइन करते हैं उसकी सिंटैक्स यहाँ पर। सबसे पहले आप स्पेसिफाई करेंगे डेटा टाइप। दिस इज द रिट ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पर लिखा हुआ डेटा टाइप, दिस इज कॉल्ड रिटर्न टाइप। योर फंक्शन विल रिटर्न, दिस विल बी स्पेसिफाइड हियर। आपको यहाँ पर उसका डेटा मेंशन करना है कि कौन डेटा टाइप आपका फंक्शन जो है वो रिटर्न करेगा। योर फंक्शन में रिटर्न सम कैरेक्टर, तो आप कर लिखेंगे कैर। आपका फंक्शन जो है वो इंटीजर रिटर्न कर सकते हो, आप इंट मेंशन। आपका फंक्शन जो है वो फ्लोट रिटर्न कर सकते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप रिटर्न कर सकता है। आपका फंक्शन जो है वो कोई स्ट्रक्चर रिटर्न कर सकता है, यूनियन रिटर्न कर सकता है। सो फंक्शन कैन रिटर्न एनी इंक्लूडिंग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। जो आपने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स बन रखे हैं वो डेटा टाइप्स भी फंक्शन आपका रिटर्न कर सकता है। इज इट क्लियर? जस्ट लुक एट द सिंटैक्स। यहाँ पर सिंटैक्स आपको है, एक आपका ये पार्ट हो गया। दूसरा फंक्शन नेम। यहाँ पर आप फंक्शन का नाम प्रोवाइड करेंगे। नाम आपका कोई भी वैलिड आइडेंटिफायर हो सकता है, बट नेम शुड बी रिलेटिव ऑफ द फंक्शनैलिटी ऑफ द फंक्शन। जो आपने फंक्शन लिखा है उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, यानी वो फंक्शन क्या काम कर रहा है, उसी से मिलता जुलता आपको नाम रखना है। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर राइटिंग अ फंक्शन टू ऐड 2 numbers, then the name of function should be add or add 2 numbers. It should not be something like sub. आप यहाँ सब्ट्रैक्शन का नाम जो है वो एडिशन में यूज ना करें। और एनी अदर आप कह सकते हैं कि बहुत ही शॉर्ट में नेम्स हो सकते हैं पास, आपने क्रिप्टिक कह सकते हैं, बल्कि आप दिया फंक्शन का एफ, या फंक्शन का नाम रख दिया आपने जी, या फंक्शन का नाम आपने रख दिया एक्स। तो इस तरह के फंक्शन अगर होते हैं तो उसमें आपको पता नहीं चलता है कि फंक्शन किस के लिए यूज किया गया, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो फंक्शन नेम शुड ऑलवेज रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। जो फंक्शन नेम है वो फंक्शनैलिटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर फंक्शन में एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं तो इट शुड सम ऐड के फंक्शन के नेम में लगाना चाहिए। आप अगर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं या मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं, या आप जो है वो क्या बोलते हैं लॉग कैलकुलेट कर रहे हैं, या आप जो है फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे हैं, या आप जो है सम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो भी आपका फंक्शन काम कर रहा है उसी से मिलता जुलता आपको फंक्शन का नाम भी रखना चाहिए। जैसा काम हो वैसे ही फंक्शन। नाउ लुक एट द थर्ड स्पेसिफिक, दिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट। जो आपने आर्गुमेंट स्पेसिफाई किए हैं पैरेंथेसिस के अंदर, ठीक है, ये जो पैरेंथेसिस है गोल वाला ब्रैकेट जो आपका है, दिस इज पैरेंथेसिस। तो पैरेंथेसिस के अंदर आपने स्पेसिफाई किया है कितने आपने आर्गुमेंट देने फंक्शन को, और उन आर्गुमेंट के डेटा टाइप्स क्या हैं। सो दिस इज डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स। जैसा आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं इसी तरह की चीजें आप यहाँ पर स्पेसिफाई करना होगा। डेटा टाइप 1 यानी कि आपका पहला आर्गुमेंट अगर इंट विल राइट इंट, डेटा टाइप में आप इंट लिख देंगे, और आर्गुमेंट 1 का नाम अगर आपके पास एक्स है तो एक्स लिख देंगे। डेटा टाइप 2, डेटा टाइप सपोज आपका उसके बाद आपके पास फ्लोट हो सकता है, या कैर हो सकता है, या लॉन्ग हो सकता है, तो आपको डेटा टाइप मेंशन करना है और उसका आर्गुमेंट का नाम मेंशन करना है। नेम इज नेम ऑफ वेरिएबल। जो आप वेरिएबल का नाम देंगे वो आपको नाम यहाँ पर मेंशन करना है। सो यू कैन हैव एन नंबर ऑफ आर्गुमेंट। इस वजह से मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई किया डेटा टाइप 1 आर्गुमेंट 1, डेटा टाइप 2 आर्गुमेंट 2, एंड देन
इलिप्सिस डॉट्स आपके जो आए, उसके बाद आपने स्पेसिफाई किया लास्ट में डेटा टाइप एन, डेटा टाइप और उसका आर्गुमेंट का नाम, आर्गुमेंट। तो दिस डिक्लेरेशन इज कॉल्ड फंक्शन प्रोटोटाइप। इस चीज को नोट कर लिए, इसको क्या कहते हैं, वी कॉल इट फंक्शन प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप आप समझते हैं कोई मॉडल होता है, तो ये भी आपका मॉडल, किसी मॉडल को देखकर पता लगा लेता है कि आपने फंक्शन को सही से कॉल नहीं किया। You have written a function with 2 arguments, and when you are calling the function providing only one, compiler is able to identify that you are calling with one argument less। ये तो कंपाइलर को मालूम पड़ा है कि आपने गलत आर्गुमेंट दिए इसमें, दो और आपने एक ही प्रोवाइड किया है, और आपने लिखा था फंक्शन ऐड 2 नंबर्स, ठीक है, आपने फंक्शन बनाया 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए, और उसमें आपने आर्गुमेंट देने हैं 2 इंटीजर्स या 2 फ्लोट, आपने उसमें आर्गुमेंट सप्लाई किए। अब आप क्या करते हैं, आप फंक्शन में 2 स्ट्रिंग्स सप्लाई कर देते हैं। ऐड में आप अगर ये सप्लाई करते हैं हेलो और स्ट्रिंग, देन फंक्शन विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट टास्क बिकॉज हेलो एंड वर्ड दीज आर नॉट तो इनको आप ऐड नहीं कर सकते। तो कंपाइलर ये यहीं से मालूम कर लेता है, कंपाइलर जो है फंक्शन प्रोटोटाइप को देख के ये मालूम हो जाता है कंपाइलर को कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हैं और उनके आर्गुमेंट्स की टाइप क्या है और उनका ऑर्डर क्या है। क्लियर, जो आर्गुमेंट आपने पहले लिखा है ये पहले आएगा, जो दूसरा लिखा है वो दूसरा आएगा। या ये आप समझ लीजिए कि आपने जो आर्गुमेंट पहले नंबर में मेंशन किया है वो आर्गुमेंट 1 को रिप्रेजेंट करेगा, जो आपने दूसरे नंबर पे स्पेसिफाई किया वो दूसरे आर्गुमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। सो दिस हाउ वी आर स्पेसिफाइंग डिफरेंट आर्गुमेंट्स टू द फंक्शन। नाउ लुक एट एग्जांपल, एक यहाँ पर एग्जांपल में दिया हुआ है। ये प्रोटोटाइप आप जो है वो जनरल के अंदर या मेन से पहले ही स्पेसिफाई कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रोटोटाइप। यहाँ पे आप अगर देखें फंक्शन रिटर्न टाइप का है, int is the return type of the function, okay, add name of the function int x comma int y, this is called argument list। तो इस argument list में हमने 2 argument स्पेसिफाई किए and both arguments, one is known as int x and another is called int y and semicolon, nothing else। this is called prototype of the function। ये आपके फंक्शन का प्रोटोटाइप कहलाएगा and it should be specified। ये आपका this is good practice to specify the function prototype से आप भी अगर इस फंक्शन को देखें तो आपको मालूम पड़ जाएगा फंक्शन का नाम क्या है, ऐड है, फंक्शन को कितने आर्गुमेंट चाहिए, 2 आर्गुमेंट चाहिए, और दोनों के आर्गुमेंट का टाइप क्या है, दोनों का क्या वो, और ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, ये फंक्शन इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो आप फंक्शन प्रोटोटाइप को देख के इतनी इन्फॉर्मेशन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फंक्शन डेफिनेशन बाद में आएगी, लेकिन फंक्शन प्रोटोटाइप से ही आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि आप फंक्शन कॉल को देख के बता सकते हैं कि आपने सही फंक्शन कॉल किए या गलत फंक्शन कॉल किए। सो द थिंग इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। तो ये हमारा हो गया डिक्लेरेशन फंक्शन प्रोटोटाइप, यही कहीं प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन हमने यहाँ पर क्या किया, फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेयर करते हैं। जो आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड रिटर्न टाइप, यहाँ एरो लगा के लिखा हुआ मैंने रिटर्न टाइप, तो ये आपका रिटर्न टाइप हो गया। दिस इज कॉल्ड फंक्शन नेम, ये जो आप देख रहे हैं ये फंक्शन नेम हो गया। और ये जो देख रहे हैं पैरेंथेसिस के अंदर दिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट लिस्ट। इस वजह से इसमें कितने भी आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, डिपेंड करेगा आपने प्रोटोटाइप में या फंक्शन की डेफिनेशन में कितने आर्गुमेंट स्पेसिफाई। कंपाइलर ने इसमें रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं लगा रखी है, आप कितने भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर नीड। ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपके पास अगर बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट है, इसका बहुत ज़्यादा काम एक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको इस तरह की फंक्शंस नहीं लिखनी चाहिए। जनरली फंक्शन में से ज़्यादा आर्गुमेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज रिटर्न टाइप जो आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड return type and called function name as argument list, ठीक है। आप अगर ऊपर देखें यहाँ पर सेमीकोलन लिखा है, सेमीकोलन लगा हुआ है इस डिक्लेरेशन के बाद। सो दिस इज कॉल्ड फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, आपने फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर दिया। ये प्रोटोटाइप आपका ग्लोबल स्कोप में हो सकता है, यानी कि मेन से पहले भी हो सकता है या मेन के अंदर भी हो सकता है। आपने अगर मेन के अंदर दिया है तो फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो फंक्शन के लिए
मेन के लिए लोकल हो जाएगी। दिस फंक्शन जो यूजर डिफाइंड फंक्शन आप बना रहे हैं, दिस फंक्शन कैन बी यूज्ड ओनली इन प्रोग्राम। फंक्शन की डेफिनेशन, आपने फंक्शन का प्रोटोटाइप मेंशन कर दिया, अब फंक्शन की डेफिनेशन की बारी आएगी। तो फंक्शन की डेफिनेशन भी इस तरह से स्टार्ट होगी जैसा आपका प्रोटोटाइप था। प्रोटोटाइप में आप कॉलन दिया था, यहाँ पर सेमीकोलन नहीं आएगा। नोट दैट नो सेमीकोलन इन द प्रोटोटाइप इन द फंक्शन डेफिनेशन। आप अगर फंक्शन डेफिनेशन में देखें तो यहाँ पर कोई सेमी नहीं आया जैसा कि फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन में आया था। इसके बाद हमने यहाँ पर मेंशन किया इसकी बॉडी। You can observe that this is the function body. फंक्शन की बॉडी जो डबल इसके बेसिस के अंदर बने हुए, these instructions are part of the user defined function add function का पार्ट। इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट आप यहाँ पर, दिस इज int s, ठीक आपका ये स्टेटमेंट है। so this is simply a declaration of variable s, then we are calculating sum। यहाँ पर आप देखें तो सम कैलकुलेट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिस्ट को कैलकुलेट कर ये को कैलकुलेट करके वेरिएबल s में स्टोर कर दिया, एंड द सेम हैज बीन रिटर्न, दैट इज द रिजल्ट हैज बीन रिटर्न। रिटर्न टाइप हमने क्या स्पेसिफाई किया था, इंट किया था, और s का डेटा टाइप क्या है, इंट है। सो s विल बी रिटर्न टू द कॉलिंग फंक्शन। जिसने ऐड फंक्शन को कॉल किया होगा वहां पर ये रिजल्ट रिटर्न हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी राइट अवर फंक्शन प्रोटोटाइप एंड फंक्शन डेफिनेशन। इज इट क्लियर? दो चीजें मैंने आपको कर दी यहाँ पर। एक है फंक्शन प्रोटोटाइप जो आप स्पेसिफाई करते हैं, उसमें फंक्शन का रिटर्न टाइप आता है, रिटर्न डेटा टाइप, फंक्शन का नेम आता है और आर्गुमेंट लिस्ट आती है, उसके बाद सेमीकोलन आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड फंक्शन प्रोटोटाइप। और जहाँ पर फंक्शन डेफिनेशन देते हैं वहां पर आप सेमीकोलन हटाकर उसके बाद ब्रेसेस लगाएंगे, और ब्रेसेस के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन आपको एग्जीक्यूट करने हैं वो सारे इंस्ट्रक्शन आप स्पेसिफाई करेंगे। सो दिस विल बी कॉल्ड बॉडी ऑफ द फंक्शन। तो जो आपने यूजर डिफाइंड फंक्शन डिक्लेयर किया था, उसका प्रोटोटाइप दिया था, उसकी आपने बॉडी स्पेसिफाई कर दी, आपने उस फंक्शन को डिफाइन कर दिया है। फंक्शन कैसे काम कर रहा है इसी चीज को बताने के लिए जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हमारी फंक्शन डेफिनेशन कहलाएगी। इसमें एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन है डेफिनेट, तो जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपने इस तरह ब्रेसेस के अंदर स्पेसिफाई कर दिए हैं। अब आप फंक्शंस को क्लासिफाई कर सकते हैं कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, या टाइप डिपेंडिंग ऑन दी आर्गुमेंट लिस्ट डिसाइड कर सकते हैं कि आपका फंक्शन जो है वो क्या रिटर्न कर रहा है। तो फंक्शन में बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप। आप अगर यहाँ पर देखें लिखा हुआ है, मेंशन हो रहा है, इस बेसिस पे आप क्लासिफाई कर सकते हैं रिटर्न टाइप के बेसिस पे कि आपका फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, और आर्गुमेंट लिस्ट क्या आप उसे सप्लाई क्या कर रहे हैं। इट मीन्स जो टाइप है दैट इज एक्चुअली आउटपुट ऑफ द फंक्शन, और जो आर्गुमेंट लिस्ट है दिस इज इनपुट ऑफ द फंक्शन। फंक्शन जो इनपुट ले रहा है वो आर्गुमेंट लिस्ट के थ्रू लेगा। फंक्शन को जो इनपुट चाहिए वो आर्गुमेंट लिस्ट के थ्रू दिया जाएगा। फंक्शन जो कैलकुलेट करने के बाद आउटपुट रिटर्न करेगा वो रिटर्न टाइप के थ्रू दिया जाएगा। सो यू कैन क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न टाइप एंड आर्गुमेंट लिस्ट। यू कैन हैव अ फंक्शन व्हिच टेक नो आर्गुमेंट। आपके पास ऐसा फंक्शन हो सकता है जो कोई आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है एंड रिटर्न्स नथिंग, और कोई वैल्यू रिटर्न भी नहीं करता है। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई फंक्शन है देन दिस शुड बी द प्रोटोटाइप ऑफ द फंक्शन void। यहाँ पर मैंने फंक्शन का नाम जो है fn लिया है, कोई प्रॉपर फंक्शन तो है नहीं इसलिए सिर्फ fn ले लिया है। इट इज डूइंग नथिंग, कोई काम नहीं कर रहा है ये। तो इट्स नेम हैज बीन गिवन एज fn। फंक्शन के लिए मैंने शॉर्ट fn यूज कर लिया है, लेकिन आप अगर इससे कुछ काम करवाना चाहते हैं यू कैन स्पेसिफाई प्रॉपर नेम ऑफ द फंक्शन। तो रिटर्न टाइप इज void। आपने देखा था आपके void मेन का मतलब क्या होता है। सो void मीन्स इट रिटर्न नथिंग। तो आप यहाँ पर अगर देखें void फंक्शन, इट मीन्स दिस फंक्शन fn इट रिटर्न्स नथिंग। ये कुछ रिटर्न नहीं करता है, जो करना है वो कर देगा लेकिन कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। एंड आर्गुमेंट लिस्ट भी void लिखा है, आपने ऐसे भी फंक्शन यूज किए होंगे void मेन void। अगर आपने void यूज किया हुआ है तो जो दूसरा void है जो आपने आर्गुमेंट लिस्ट की जगह पर दिया हुआ है, इट इज स्पेसिफाइंग दैट यू आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी आर्गुमेंट टू द फंक्शन। आप इस फंक्शन को कोई भी आर्गुमेंट अप्लाई नहीं करते। इट मीन्स you are giving nothing and the function is giving you nothing।
but it may be doing some function or functionality being provided by the function. कुछ काम ऐसा कर रहा हो सकता है जिसमें कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं. फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फंक्शन हो सकता है जो आपके पास पूरी स्क्रीन में स्टार स्टार प्रिंट कर दे. आपके पास एक ऐसा फंक्शन हो सकता है जो स्टार के बजाय स्लैश प्रिंट कर दे, यानी कि एक आपको ब्लैंक लाइन प्रिंट करके दे दे. तो आपके पास ये ऐसे फंक्शन हो गए जिनमें आप कुछ आर्गुमेंट नहीं दे रहे हैं और ये फंक्शन भी आपको कुछ रिटर्न नहीं करें. जो कर रहे हैं फंक्शन वो आपका स्क्रीन पे प्रिंट कर दे रहे हैं. अगर स्क्रीन पे प्रिंट कर रहा है फंक्शन तो ये रिटर्न नहीं कर रहा है. इज इट क्लियर? जो आप स्क्रीन पे प्रिंट करा रहे हैं वो रिटर्न वैल्यू नहीं, वो तो फंक्शन ने कुछ अपने बॉडी के अंदर परफॉर्म किया. फंक्शन अगर कुछ रिटर्न करेगा एक्सप्लिसिट रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू, ओनली देन इट विल बी कॉल्ड समथिंग. एक आपका क्लासिफिकेशन ये हो गया, इट टेक्स नथिंग एंड इट रिटर्न्स. दूसरा ये हो सकता है इट टेक्स समथिंग एंड रिटर्न्स नथिंग. तो इसमें आर्गुमेंट में आपके पास कुछ आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं. आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है फंक्शन आपका, बट इट इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग. लेकिन ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल यू में प्रिंट नंबर ऑफ स्टार्स, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ऊपर जो फर्स्ट टाइप की कैटेगरी फंक्शन में आप कह सकते हैं आपने फंक्शन बनाया, उसका नाम है स्टार लाइन. ठीक है, आप जो है पूरी लाइन में स्टार प्रिंट कर देते हैं. आपका जो टेक्स्ट मोड में लाइन प्रिंट होगी उसमें सपोज 82 कैरेक्टर्स है, तो आप 82 कैरेक्टर्स अपनी तरफ से प्रिंट कर दे रहे हैं पूरी लाइन में. तो एक फुल आपकी लाइन में वो स्टार से होके आ जाएगी. सो यू मे कॉल दिस फंक्शन एज स्टार लाइन. और इसमें आपने आर्गुमेंट सप्लाई नहीं किया कितने स्टार प्रिंट करने, आप बाय डिफॉल्ट 80 प्रिंट कर रहे हैं. ठीक है, सो यू आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी नंबर. रिटर्न क्या कर रहा है? सो सिंस यू आर नॉट कैलकुलेटिंग एनीथिंग, तो आप कोई रिजल्ट भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं. तो स्टार लाइन वॉइड, आपके पास एक एग्जाम्पल जाएगा जिसमें आप कोई ना आर्गुमेंट ले रहे हैं ना कुछ रिटर्न कर रहे हैं. दूसरा टाइप जो लिखा हुआ है यहाँ पर मैंने कि इट टेक्स सम इनपुट एंड इट रिटर्न्स नथिंग. तो आप इसी फंक्शन को दोबारा से कंसीडर कर सकते हैं. स्टार लाइन नाम का आपने एक फंक्शन बनाया है, इसमें आप इंट एन करते हैं, आप इसको एक आर्गुमेंट प्रोवाइड करते हैं. ये आर्गुमेंट आपको बताता है कितने स्टार आपकी लाइन में प्रिंट करने. आप अगर कहते हैं एन की वैल्यू 80 तो ये 80 स्टार्स प्रिंट कर देगा. आप कहते हैं 40 तो ये 40 स्टार्स प्रिंट कर देगा. आप कहते हैं 10 तो ये 10 स्टार्स प्रिंट कर देगा. इज इट क्लियर? The second category function is working like this. You are providing some integer argument, and depending on the value of n, you are printing a star line full of n number of stars. Okay. आप एक star line print कर रहे हैं where there are n stars. Asterisk आप कह सकते हैं, जो आपके कीबोर्ड पे कैरेक्टर होता है स्टार या asterisk, आप उसको प्रिंट करवा रहे हैं. तो आपने नंबर ऑफ बता दिया. आप कह रहे हैं 3 स्टार तो 3 स्टार प्रिंट हो, आप कह रहे हैं 10 स्टार तो 10 print. So this is another category of function where you are providing some argument, but the function is not returning anything. Third category, you are not providing anything, but function is returning some value. या आपके पास तीसरी कैटेगरी हो सकती है कि आपने फंक्शन को कुछ प्रोवाइड नहीं किया था लेकिन फंक्शन ने आपको कुछ रिटर्न किया है. ये कब हो सकता है? ये उन केसेस में हो सकता है where you have not taken any argument from argument list, but we have scanned the values. आपने एक फंक्शन बनाया और उसमें कोई आर्गुमेंट सप्लाई नहीं किया, but we have scanned different values. For example, you are calculating interest. क्या आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का आपने कोई फंक्शन बनाया है. इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? यू नीड इनिशियल अमाउंट. ठीक है, आपको इनिशियल अमाउंट की जरूरत होती है. तो आप उस इनिशियल अमाउंट को जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं. उस इनिशियल अमाउंट को स्पेसिफाई करने के लिए इनिशियल अमाउंट को आपने स्पेसिफाई करने के बजाय आपने स्कैन करवा दिया. ठीक है, आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम और अमाउंट, इन सब चीज़ों को आप स्कैन करने आर्गुमेंट लिस्ट से रीड करने का आपने फंक्शन के अंदर स्कैन करवा दिया. सो यू हैव द डेटा, जो रिक्वायर्ड डेटा था वो आपको मिल गया. अब आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, सिंस यू हैव कैलकुलेटेड समथिंग, तो आपको ये रिजल्ट रिटर्न करना है. या आपने 2 नंबर का एडिशन करना था या फैक्टोरियल कैलकुलेट करना था. सपोज किसी नंबर का फैक्टोरियल था, तो आपने बजाय नंबर को पास करने के इन आर्गुमेंट लिस्ट आप ये काम कर सकते हैं कि आपने एन की वैल्यू स्कैन करवा दी और उस स्कैन वैल्यू के हिसाब से आपने फैक्टोरियल रिटर्न कर दिया. सो यू आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी आर्गुमेंट, बट यू आर स्कैनिंग. अगर प्रोवाइड नहीं करेंगे तब भी आपको चाहिए तो होगा ही, तो आप या तो इनिशियलाइज करेंगे, स्कैन करवाएंगे.
अगर आपने आर्गुमेंट लिस्ट से प्रोवाइड किया, एंड देन यू विल रिटर्न समथिंग. And the fourth category is where you are providing some argument, and depending on these argument and the functionality of the function, you are returning the results. आप यहाँ results return कर रहे हैं. आपने यहाँ पे एक function बनाया है, या फिर मैंने फोर्थ कैटेगरी के लिए एग्जांपल दिया है कि आपने सपोज फंक्शन बनाया सम, ठीक है, और सम में आपने दो इंट पास किए हैं, इंट एक्स एंड इंट वाई, और इसका रिटर्न टाइप जो है वो इंट. आप दो इंटीजर को अगर ऐड करेंगे तो आपको इंटीजर ही सम मिलेगा. सो दिस आर फंक्शनैलिटी ऑफ द मॉड्यूल. ये आपने जो मॉड्यूल बनाया उस मॉड्यूल की फंक्शनैलिटी क्या हुई कि आपके पास एक सम फंक्शन है जो दो आर्गुमेंट एक्सेप्ट है, दोनों इंटीजर के हैं, और ये उन दोनों को ऐड करके उनका सम रिटर्न कर देता है. And the fourth category, this is the most important and the useful category, and generally used by the programmers. तो fourth category यही आपकी ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि ये आपका फुल कंट्रोल है. यहाँ पर आप अपनी तरफ से आर्गुमेंट सप्लाई कर रहे हैं, आर्गुमेंट के बेसिस पर आपने जो कैलकुलेशन परफॉर्म की उसका रिजल्ट रिटर्न करवा रहे हैं. तो आपके पास जो पहली, दूसरी, तीसरी कैटेगरी है वो बहुत यूजफुल कैटेगरी नहीं. आप लेकिन उसके भी फंक्शंस, लेकिन आपकी जो मोस्ट यूजफुल कैटेगरी है वो फोर्थ कैटेगरी. यहाँ पर आप जो है प्रोवाइड करेंगे वैल्यूज, उसको आप आर्गुमेंट प्रोवाइड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आपको अगर दो नंबर ऐड करवाने तो आप दो नंबर बताएं, फंक्शन आपका रिजल्ट रिटर्न करेगा. आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, आप n की वैल्यू बताएंगे, इस वैल्यू का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, और आपका फंक्शन जो है वो उस वैल्यू को रिटर्न कर देगा, उसका फैक्टोरियल रिटर्न कर देगा. सो दिस इज हाउ द फोर्थ कैटेगरी वर्क्स. कि इसमें आप जो number of arguments है उतने number of proper number of arguments you will select, and it will return the result depending on the functionality of the function. जो आपका functionality है function की, उसकी basis पर ये आपको result return कर देगा. आप इस एग्जाम्पल देख सकते हैं. देखिए यहाँ पर मैंने स्टार लाइन का void, दोनों इसमें कैटेगरीज आपकी void, रिटर्न टाइप void एंड आर्गुमेंट लिस्ट void. देखना आप दोनों चीजें यहाँ पर void है, ना हमने कोई इसको आर्गुमेंट सप्लाई किया, ना इसको कोई ना इसने कोई फंक्शन ने हमें वैल्यू रिटर्न की. फंक्शन का आप देखें तो डेफिनेशन ये हो गया है. इसमें क्या किया, आई को 0 लिया है, 25 स्टार्ट्स बाय डिफॉल्ट प्रिंट. ठीक है, तो इंसर्ट अ न्यू लाइन सो दैट स्टार लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम अ न्यू लाइन, और स्टार लाइन के बाद एक न्यू लाइन इंसर्ट कर दी. तो ये तो इसके अंदर की फंक्शनैलिटी हो गई, कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन. ये जो चीजें हैं जो हम इस फंक्शन के अंदर कर रहे हैं हिडन हो गई इस डेफिनेशन के पीछे. नाउ वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट कि हमने क्या करना है, कॉलिंग इट थ्रू इंटरफेस ओनली. जहां भी आपको स्टार लाइन की जरूरत होगी वी विल कॉल द फंक्शन स्टार लाइन. जैसे आप प्रिंट फंक्शन कॉल करते हैं, प्रिंट एफ को कॉल करते हैं, उसी तरह से आप स्टार लाइन फंक्शन को कॉल करेंगे, एंड इट विल डू ऑल द थिंग्स जो भी इसमें स्पेसिफाइड है. तो इसी चीज को हम कहते हैं कि हमारा एब्स्ट्रैक्शन है, फंक्शनल एब्स्ट्रैक्शन. फंक्शन हमारा क्या काम कर रहा है ये डिटेल्स हमारी फंक्शन की डेफिनेशन में हिडन है. यूजर जो उसको अगर स्टार लाइन हम किसी लाइब्रेरी के थ्रू अवेलेबल करा दें, देन यू आर नॉट अवेयर ऑफ द फंक्शनैलिटी के फंक्शनैलिटी इसकी प्रोवाइड हो कैसे, ये फंक्शन ये काम कैसे कर रहा है. यू आर जस्ट कंसर्न विद द फंक्शनैलिटी. आपको सिर्फ फंक्शनैलिटी से मतलब है कि हमारे पास एक स्टार लाइन फंक्शन है, उसका काम क्या है, इट विल प्रिंट स्टार लाइन. एक स्टार लाइन प्रिंट कर देगा. कैसे प्रिंट करेगा, यू आर नॉट कंसर्न बॉदर्ड अबाउट इट कि फंक्शन जो है वो काम कैसे करेगा. यू आर कंसर्न और यू आर concerned with the functionality only. So this is an example of first type of function. This is second category. जैसा मैंने बताया था पिछली बार हमने दोनों चीजें void रखी थी. यहाँ पर आप देख सकते हैं this is void जो return type है, हम कुछ return नहीं कर पा रहे, but its argument is int n. We are providing one integer type argument. This is a function to draw a line of n stars. यहाँ पर n number of stars हम जो है यहाँ draw करने वाले हैं. तो इस फंक्शन में हमने नंबर ऑफ आर्गुमेंट प्रोवाइड कर दिया है. देखिए यहाँ पर गलती रह गई, ये void नहीं होगा, प्लीज नोट, ये void नहीं है. काट दी, यहाँ पे लिखिए int n. माउस से लिखना भी मुश्किल काम होता है. int आप void हटाकर उसकी जगह int n लिख लीजिए. ओके,
now functionality is almost int I equals to 0, print ये आपका न्यू लाइन यहाँ पर n लेस देन n किया है फंक्शन में। आप देखें तो इट वाज I लेस देन 25 था, अब क्या किया है I लेस देन n किया है यहाँ पर। तो अब ये n नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट कर देगा। अगर n की वैल्यू 25 है तो दूसरा फंक्शन में वो फंक्शनैलिटी आपको प्रोवाइड करेंगे, और अगर इसमें डिफरेंस है आपने n की वैल्यू प्रोवाइड होगी, इतने आपकी स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। सो दिस फंक्शन इज टेकिंग आर्गुमेंट एंड इट इज नॉट रिटर्निंग एनी रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट हो भी नहीं सकता। आप अगर सोचें स्टार लाइन आप प्रिंट कर रहे हैं तो उसमें क्या रिजल्ट है, नथिंग। ये कोई कैलकुलेशन तो हो नहीं रही जिसमें कुछ रिजल्ट हो। दिस इज कैटेगरी 3। ये आपने देखिए इंटरेस्ट का एग्जांपल दिया इसमें, कैटेगरी 3। इसमें लोग कितना लेट जो है ज्वाइन करते हैं। आप लोग ऐसा करिए, अपना नाम, रोल नंबर और ईमेल आईडी डाल दी। कुछ लोग गलत ईमेल डाल रखे हैं, प्रॉब्लम होती है कि मेल बाउंस हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन 2-3 लोगों के गलत है। जिन लोगों के ईमेल है एटलीस्ट, या जिनको मेल रिजल्ट का नहीं पहुंचा है, मैंने जो असाइनमेंट दिया था उसका रिटर्न किया रिजल्ट, तो वो जिन लोगों के पास नहीं पहुंचा वो लोग अपना मेल और नेम और रोल नंबर तीनों चीज़ें स्पेसिफाई करते हैं। बाकी लोग अपना सिर्फ रोल नंबर से भी काम चला सकते हैं। फाइन, दिस इज अवर थर्ड कैटेगरी ऑफ फंक्शन डेफिनेशंस कि आप इस तरह से भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आपने कोई अप्लाई नहीं किया है, आर्गुमेंट इज void, argument is void, but it is returning some value, floating point value return कर रहा है। तो आपने यहाँ पर स्पेसिफाई किया फ्लोट, यहाँ पर भी देखिए आप लिखा हुआ है ये हमारा फंक्शन प्रोटोटाइप है। दिस इज अवर फंक्शन प्रोटोटाइप एंड दिस इज फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन आप देखिए इसमें फ्लोट रिटर्न टाइप आ गया, देन इंटरेस्ट एंड आर्गुमेंट लिस्ट void। इसके बाद हमने जो वेरिएबल जिनकी रिक्वायरमेंट वो यहाँ पर स्पेसिफाई किए, void, I, P, R और T। इन सब चीज़ों प्रिंसिपल अमाउंट को स्कैन कर लिया यहाँ, फिर आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कैन कर लिया यहाँ, फिर आपने ड्यूरेशन को, टाइम को आपने स्कैन कर लिया यहाँ। देन यू हैव कैलकुलेटेड द इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द फार्मूला R into P into T divide 100 and then you have returned the value of I। जो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया उसी को हमने रिटर्न कर दिया है। फंक्शन इज नॉट एक्सेप्टिंग एनी आर्गुमेंट, आप इससे कोई आर्गुमेंट सप्लाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितने आर्गुमेंट की जरूरत थी एक्चुअली इसने कीबोर्ड से ले लिए। जब सप्लाई करते तो आपको स्कैन नहीं करवाना पड़ता है, यू आर प्रोवाइडिंग द, इस फंक्शन को स्कैन नहीं करना पड़ेगा। दिस इज नॉट गुड प्रैक्टिस कि आप फंक्शन के अंदर स्कैन करें, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया कि आप कर सकते हैं कि आपने आर्गुमेंट जो है वो सप्लाई नहीं किए, सो यू मेड द आर्गुमेंट लिस्ट एज void। आपने आर्गुमेंट लिस्ट को तो void बना दिया, लेकिन जितने आर्गुमेंट की जरूरत थी वो सब आपने कीबोर्ड से वहीं पे स्कैन करवा ली। दिस इज नॉट गुड प्रैक्टिस, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं। थर्ड कैटेगरी ऑफ फंक्शन, यहाँ पर आपने आर्गुमेंट कोई स्कैन नहीं किया, आर्गुमेंट कोई सप्लाई नहीं किया था, बट कैलकुलेटेड सम रिजल्ट एंड यू हैव रिटर्न द रिजल्ट। तो आपने यहाँ पर रिजल्ट रिटर्न किया, लेकिन कोई आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं किया था, ऑल्दो यू हैव स्कैन द वैल्यूज। तो ये आपकी थर्ड कैटेगरी हो जाएगी। यहाँ पे आपने कोई आर्गुमेंट नहीं लिया, लेकिन आपने वैल्यू स्कैन करवाई कीबोर्ड से और रिजल्ट जो है वो रिटर्न किया है। दिस इज फोर्थ कैटेगरी ऑफ एग्जाम्पल। क्या आपको ये किसी भी चीज़ के लिए फंक्शन बनाना, फॉर एग्जाम्पल आपको ये मालूम करना है कोई पर्टिकुलर गिवन इंटीजर प्राइम है या नहीं। यू टू नो whether the given number x is prime or not। आप ये मालूम करना चाह रहे हैं कि x है ये प्राइम है या नहीं। अगर ये प्राइम है then function should return true, ठीक है, otherwise it should return false। आप कह सकते हैं ट्रू के लिए हम 1 यूज कर रहे हैं तो इसे 1 रिटर्न करना चाहिए, या अगर ये प्राइम नहीं है तो इसे 0 रिटर्न करना चाहिए। प्राइम आप ऑलरेडी प्रोग्राम बना चुके हैं प्राइम का, कि आप प्राइम कैसे डिसाइड कर। सो वी वांट वेरिएबल x, पहले आपने मेन प्रोग्राम के अंदर बनाया था, अब हमने तो एक नाम दिया फंक्शन को इस प्राइम। इस प्राइम मतलब क्या प्राइम है, इस तरह का फंक्शन हो गया, इसे प्राइम। सो
आर्गुमेंट हमने लिया इंट, क्योंकि हम इसमें या तो 0 रिटर्न करवाएंगे या 1 रिटर्न करवाएंगे। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दी रिटर्न टाइप एज हियर। फंक्शन का नाम क्या है, इज प्राइम। आर्गुमेंट लिस्ट क्या है, इंट एक्स। हमें सिर्फ एक नंबर के बारे में मालूम करना है, इसलिए हमने एक आर्गुमेंट सप्लाई कर दी। नाउ दिस इज अवर डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। ये आपकी फंक्शन डेफिनेशन हो गई। आपने यहाँ पर प्रोवाइड किया है इंट i इक्वल्स टू 2, जो आप जनरली करते हैं, कोई भी आप प्राइम नंबर चेक करते हैं, आप 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, और एक हमने वेरिएबल ले लिया फ्लैग। अगर आपका कोई नंबर जो है वो 2 लेकर आप डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं और n तक, आप अगर n कर रहे हैं, n तक किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, इट मीन्स द नंबर इज, फॉर एग्जांपल यू आर स्टार्टिंग, यू आर चेकिंग द 11 नंबर इज प्राइम और नॉट, तो आप क्या करेंगे, आप 2 से डिवाइड करेंगे, आउटपुट इज नॉट 0। आप 3 से डिवाइड करेंगे, आउटपुट इज नॉट 0। 4 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, ठीक है। आप 10 तक डिवाइड करेंगे, लेस देन x तक डिवाइड करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 अप टू x माइनस 1, यानी x से लेस देन तक आप डिवाइड करेंगे। अगर इस बीच में किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, इट मीन्स द नंबर इज प्राइम। अगर किसी भी नंबर से डिवाइड होता है तो ये प्राइम नहीं होगा। अगर डिवाइड हो जाता है, आपका जो ये रिजल्ट है x%i से चेक करना है, डिवाइड करना, तो ये आपका 0 हो जाएगा। अगर x i से डिविजिबल होगा किसी भी वैल्यू पर, तो आपकी ये वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। इट मीन्स नंबर इज डिवाइडेड, योर नंबर इज डिविजिबल बाय सम नंबर बिटवीन 2 एंड n-1 और x-1। जैसे ही आपका नंबर डिवाइड होता है, आपने फिर क्या किया, 0 पे सेट कर दिया, इट मीन्स योर नंबर इज और प्राइम। फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो 15 को चेक कर रहे हैं, आपने 2 से डिवाइड किया, नहीं डिवाइड हुआ, फिर आपने 3 से जैसे डिवाइड किया, हो गया, डिवाइड हुआ, वहीं पे आपने फ्लैग को 0 पे सेट कर दिया। आप अगर 17 को चेक करें, आपने 2 से डिवाइड किया, नहीं डिवाइड हुआ, फ्लैग इज 0। और अगर आपने फ्लैग को जो है वो, एक चीज और मेरे ख्याल से इसमें गलत लग रही मुझे, दिस शुड बी 1। फ्लैग को आपने इनिशियली 1 पे इनिशियलाइज करना है, ठीक है, तभी हमने इसको यहाँ पर 0 पे कन्वर्ट किया है, ठीक है। फ्लैग शुड बी इनिशियलाइज्ड एट 1, इसको आप करेक्शन कर ली, ठीक है। तो हमने 17 को सपोज चेक कर रहे हैं, तो आपने 2 से डिवाइड किया, नहीं डिवाइड हुआ, फ्लैग विल रिमेन 1। आपने 3 से किया, नहीं डिवाइड हुआ, 4 से किया, 5 से किया, 6 से किया, किसी से डिवाइड नहीं हुआ, फिर आप 15 से डिवाइड किया, फिर भी नहीं हुआ, 16 से आपने डिवाइड किया, फिर भी नहीं हुआ। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 2 एंड अप टू 16 इट हैज नॉट बीन डिविजिबल बाय एनी नंबर। 17 जो है वो आपका 2 से लेकर 16 तक आपने सबसे चेक किया, किसी से डिविजिबल नहीं। अगर किसी से डिविजिबल होता तो आप फ्लैग को सेट कर देते 0। अब ये किसी से डिविजिबल नहीं हुआ, तो आपका फ्लैग जो है इट विल रिमेन 1 पे इनिशियलाइज किया, यहाँ पर हमने 0 गलत था, 1 से, ठीक है, 1 पर इनिशियलाइज किया, सो इट विल रिमेन 1। अब आपने इसी को रिटर्न कर दिया, जो फ्लैग की वैल्यू है वही आपने रिटर्न कर दी। तो फ्लैग की वैल्यू अगर 1 थी, सो इट विल रिमेन 1। अगर ये यहाँ पर इस ब्लॉक में एंटर नहीं हुआ है, अगर ये कंडीशन एक भी ट्रू नहीं हुई है, तो ये फ्लैग की वैल्यू 1 थी तो 1 ही रहेगी। अगर बीच में किसी भी नंबर डिवाइड हो गया आपका फ्लैग, देन फ्लैग विल बिकम 0। और जैसे फ्लैग 0 होता है, फिर आपको फर्दर चेक करने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप जो है 100 चेक कर रहे हैं, 2 से डिवाइड किया और 2 से ही डिविजिबल हो गया 100, सो इट मींस यू हैव टू स्टॉप राइट नाउ। अब आपको ये चेक करने की जरूरत है कि 3 से डिविजिबल है या 4 से डिविजिबल है। अगर वो किसी भी नंबर से डिविजिबल हो जाता है स्टार्टिंग फ्रॉम 2 अप टू n-1, देन इट कैन नॉट बी अ प्राइम नंबर। तो आपका जैसे ही डिवाइड होता है, आप वहीं पे स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। अगर पहले ही नंबर पे स्टॉप हो जाता है, तो आपको वहीं पे स्टॉप कर देना है। तो स्टॉप कैसे करेंगे, अदरवाइज लूप है चलता ही रहेगा, n नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा, ठीक है। आप 2 से स्टार्ट करेंगे, n-1 तक जाएंगे, 3 बार लूप चल के रहेगा, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, जैसे ही डिवाइड हो जाता है, आप यहाँ से ब्रेक कर देते हैं। दिस इज द रीजन फॉर यूजिंग ब्रेक इन फंक्शन, सो योर प्रोग्राम बिकम्स एफिशिएंट। अगर आप इसे ब्रेक नहीं करेंगे तब भी ये काम करेगा, बट लेकिन ये सही काम नहीं करेगा, इसमें कुछ आपकी स्पीड पे भी फर्क पड़ेगा, पर इट मे नॉट वर्क करेक्टली। तो आप जैसे ही वेट करते हैं, बाहर निकल आते हैं फंक्शन में से, इसमें से लूप में से बाहर आ जाते हैं। वंस यू आर आउट ऑफ लूप, द नेक्स्ट इमीडिएट नेक्स्ट स्टेटमेंट which is return flag, this statement will be executed and you return the value of the flag। तो यहाँ पर अगर आप 17 प्रोवाइड करते हैं पर मैं आर्गुमेंट के तौर पर, तो ये क्या रिटर्न करेगा, तो ये 1 रिटर्न करेगा। अगर आप 15 प्रोवाइड करेंगे या 100 प्रोवाइड करेंगे, तो ये 0 रिटर्न करेगा। सो दिस फंक्शन इज टेकिंग वन आर्गुमेंट एंड इट इज रिटर्निंग सम वैल्यू।
एक चीज और आप नोट करिए कि रिटर्न वैल्यू हमेशा एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। फंक्शन कैन नॉट रिटर्न मोर देन वन वैल्यू। नोट करके लिख लिए कि आपका फंक्शन जो है इट कैन नॉट रिटर्न मोर देन वन वैल्यू। बल्कि मैं इसमें यहाँ पर लिख देता हूँ, functions can return only a single वैल्यू। ठीक है, सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं फंक्शन, इस चीज को आप ध्यान रखिए। फंक्शन में इट कैन नॉट रिटर्न मोर देन वन वैल्यू। आप चाहें दो रिजल्ट करा लें, फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए कि आपको दो नंबरों का सम कैलकुलेट करना है और प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, सो यू कैन नॉट रिटर्न टू रिजल्ट्स एट दिस टाइम। आप एक बार में सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, या तो आप सम रिटर्न करवा सकते हैं या प्रोडक्ट रिटर्न करवा सकते हैं। इज क्लियर? एक रिटर्न करने का मतलब क्या है कि जो आपका रिटर्न टाइप है वो सिर्फ सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। तो सिंगल वैल्यू, सिंगल वेरिएबल, जैसे आपका यहाँ पर फ्लैग रिटर्न हो रहा है, या आपके पास कॉम्प्लेक्स या यूजर डिफाइंड टाइप भी हो सकता है। ठीक है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में कंटेन वन वैल्यू, लेकिन आप जो है अपनी तरफ से सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। तो फंक्शन कैन रिटर्न ओनली अ सिंगल वैल्यू, कैन नॉट रिटर्न मोर देन वन वैल्यू। दिस रिटर्न टाइप may be basic data type, for example int, float, char, these kind of variables, or it can return some user defined data type, so you can return struct or enum or union etc। तो आप different type के types return कर सकते हैं, सिर्फ एक variable return होगा, only one variable will be returned of any data type, maybe user defined data type or basic data type। so you should remember कि आपका function जो है वो क्या return कर सकता है, it can return only a single variable, okay? So you should remember this। so this was the example of fourth function where we are accepting arguments and it is returning result, and this is the most useful category of functions। अब एक चीज आप और समझ लीजिए, यहाँ पर इसमें प्रॉपर एग्जांपल दिया हुआ मैंने, ये और बड़ा ये देखिए आपका कि ये एग्जाम्पल है, इसी का एग्जाम्पल है इस प्राइम का। देखिए यहाँ पर ये तो आपके स्टार्टिंग हो गया, दिस इज फंक्शन प्रोटोटाइप, ऑल्दो एवरीथिंग इज रिटन हियर। देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये फंक्शन प्रोटोटाइप है, यहाँ पर सेमीकोलन के साथ लिखा हुआ है। ये मेन दिस कॉलिंग फंक्शन, जो फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करेगा वो कॉलिंग फंक्शन कहलाएगा, और जिस फंक्शन को कॉल किया जाएगा वो कॉल्ड फंक्शन कहलाएगा। सो इस प्राइम को यहाँ पर कॉल किया जा रहा है मेन के अंदर, सो मेन फंक्शन इज कॉलिंग इस प्राइम फंक्शन। सो मेन इज द कॉलिंग फंक्शन and is prime is the called function, okay? And this is called formal argument, बल्कि इसको आप यहाँ भी ले लिए। ये जो x लिखा हुआ है यही वाला है, तो हम कह रहे हैं फॉर्मल आर्गुमेंट। ठीक है, x हमारा जो है वो दिस इज कॉल्ड ये फॉर्मल आर्गुमेंट कहलाते हैं। जो आप फंक्शन प्रोटोटाइप में आप जो आर्गुमेंट्स मेंशन करते हैं दीज आर कॉल्ड फॉर्मल आर्गुमेंट्स, या फंक्शन डेफिनेशन में आप मेंशन करते हैं, ये फंक्शन डेफिनेशन, यहाँ पर भी आपने एक्स मेंशन किया हुआ है, और ये फंक्शन प्रोटोटाइप है, यहाँ पर भी एक्स मेंशन किया हुआ है। सो दिस इज कॉल्ड फॉर्मल आर्गुमेंट। दिस इज जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी, दिस विल नॉट बी एक्चुअली यूज्ड, ये आपका एक्चुअल में यूज नहीं हो रहा है, लेकिन फॉर्मल डेफिनेशन के लिए आपसे यूज कर रहे हैं। ना डेफिनेशन आप अभी पिछले पेज में ही आपको बताया था कैसे आप डिफाइन करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द डेफिनेशन। तो आप डेफिनेशन को आप स्पेसिफाई कर देंगे, एंड हियर वी आर स्पेसिफाइंग, आप यहाँ पर देखिए जरा, ये आपने उसके बोलते हैं फंक्शन की डेफिनेशन प्रोवाइड कर दिए। आर्गुमेंट int x, ये आर्गुमेंट int x, द वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन द आर्गुमेंट लिस्ट आर कॉल्ड फॉर्मल आर्गुमेंट्स। जितने भी हैं function is prime has been called in the main, and that's why
क्योंकि ये सब आपकी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस प्राइम इज कॉल्ड फंक्शन और मेन कॉलिंग फंक्शन, एक्स फॉर्मल आर्गुमेंट। और आप यहाँ पर अगर देखें जो फंक्शन आप कॉल कर रहे हैं इसमें आपने आर्गुमेंट सप्लाई कौन सा किया है, आपने यहाँ पर ए आर्गुमेंट सप्लाई किया। सो दिस ए इज कॉल्ड एक्चुअल आर्गुमेंट। आप जो से एक्चुअली जब फंक्शन को कॉल करते हैं उस वक्त जो आप आर्गुमेंट प्रोवाइड करते हैं दोज आर्गुमेंट्स आर कॉल्ड एक्चुअल आर्गुमेंट्स। तो ये जो ए है वेरिएबल ए हमारा, दिस विल बी कॉल्ड एक्चुअल आर्गुमेंट, एंड एक्स दिस इज कॉल्ड फॉर्मल आर्गुमेंट। एंड जो रिटर्न वैल्यू हुई है वो हमने वेरिएबल बी में कलेक्ट करी। इज इट क्लियर? जो वेरिएबल बी है वहां पर आपके पास जो वैल्यू रिटर्न होकर आएगी इस फंक्शन से, दैट विल बी स्टोर्ड एंड वी विल बी यूजिंग दिस वैल्यू check whether our number was prime or not. So if b is 1, it means our number is prime, else number is not prime. So this is how we are checking whether the given number is prime or not. आपने एक फंक्शन बनाया है इस प्राइम, यूजर डिफाइंड फंक्शन है, इसकी डेफिनेशन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये फंक्शन का प्रोटोटाइप है एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। एंड हियर वी हैव कॉल्ड फंक्शन, जो हमारा फंक्शन था यूजर डिफाइंड फंक्शन, उसको हमने यहाँ पर कॉल किया हुआ है। उस में हमने जो आर्गुमेंट सप्लाई किया है that is called actual argument, जो डेफिनेशन में या प्रोटोटाइप में वो फॉर्मल आर्गुमेंट कहलाते हैं। So you should always make your user defined functions simple and in such manner that each function user defined function accepting some argument. Okay. आपको करना क्या जाए तब तक आप ऐसा ना बनाएं जिसमें कोई आर्गुमेंट ना हो, अदरवाइज आपको हमेशा फंक्शन ऐसे बनाना चाहिए जिसमें आर्गुमेंट आप प्रोवाइड करें। आर्गुमेंट आपको प्रोवाइड करना चाहिए यहाँ से, you should not scan the values of argument उनको स्कैन करना चाहिए। there shall be no scan function or print function in the user defined functions। आपको जो काम करना है स्कैन का और प्रिंट का वो आप मेन फंक्शन के अंदर करिए, फंक्शनैलिटी जो है वो आप यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर। I think this is end of our today's lecture, recursion and recursive function। जब कोई फंक्शन आप ऐसा बनाते हैं जो अपने आप को कॉल करता है उस फंक्शन को हम रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं, ठीक है, और इस प्रोसीजर को रिकर्शन कहते हैं। तो ये हम नेक्स्ट टर्न पर स्टडी करेंगे, कल से ईद के बाद ही पड़ेगा अगला टर्न। तो ये दिस इज एंड ऑफ आवर टुडेज लेक्चर। आज आपको क्या क्या बताया मैंने, व्हाट आर यूजर डिफाइंड, हाउ टू define a user defined function, what is function prototype, what is function definition, what is formal argument and what is actual argument, what is called function and what is a calling function, what are different categories of functions, आप कितने तरह से आप function बना सकते हैं। Okay. So this was all that we have studied today. So I am ending our today's lecture। जो मैंने इनपुट करने के लिए कहा था कर दिया होगा।